आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। तमिलनाडु में विजय थलपति जो है उनका सितारा चमक उठा है। साथ ही राहुल गांधी और स्टालिन को बड़ा झटका लगा है। असम में भाजपा की बम नजर आ रही है, यानी कि क्लीन स्वीप के साथ भाजपा को लेकर के जो कयास लगाए गए थे बिल्कुल उसी तर्ज पर भाजपा नजर आ रही है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य है जहां पर शायद कई लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था कि भाजपा का प्रदर्शन इतना बेहतरीन होगा और टीएमसी को इतना बड़ा झटका लगेगा। साथ ही केरलम और पांडुचेरी में भी जो है वो तस्वीरें धीरे धीरे स्पष्ट होती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये जो 3 राज्य हैं, चाहे वो असम हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो, केरलम हो, पांडुचेरी हो, सभी जगहों पर वोटों की गिनती जारी है और जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पांडुचेरी की बात करें तो जो रुझान परिणाम में बदल रहे हैं उस पर लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। This is a good beginning. I'm sure that our win is not. कितने सीट असम में आपको? नहीं, आसाम में तो देखिए, आसाम में एनडीए इस बार पहले से ज़्यादा ही एनडीए का चांसेस है, क्योंकि अब देखिए लास्ट 5 साल जिस तरफ स्टेटों का, राज्यों का डेवलपमेंट के लिए सीएम ने काम कर रहा है, हमारे गवर्नमेंट काम कर रहा है, लोग हमारे साथ हैं। कांग्रेस का कल कांग्रेस ने विरोधियों को और राजीव भवन में कांग्रेस ऐसे ड्रामा कर रहा है। कांग्रेस का क्या काम है? कांग्रेस का ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बहुत लंबा दिन तक पावर में था। तो क्या किया कांग्रेस डिड नथिंग फॉर द पीपल ऑफ दिस स्टेट। तो लोग हमारे साथ हैं, एनडीए भारी बहुमत से इस बार जीतेंगे और डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा फिर बनेंगे। The lotus blooming in Kerala. This is just a beginning, and the fact of the matter is we are already leading in 5 seats, and it is our belief and information from our Karyakartas that we will have further seats coming in. So that is just the beginning, and if things go well, the BJP will be not just one of the parties, but will be a leading party in Kerala. Do you expect some more seats from as local party election? Yes, my expectation is we might increase our number of seats and vote share, which will be, I think, remarkable, since the LDF and UDF have been the primary players. Now this is going to be a replacement of these 2 entities. As it is, I think it's a neck-to-neck fight between UDF and LDF. As of now, the surprising state is where BJP is leading in. Yes, West Bengal is the place where we are in the reckoning. Assam, we are already there. So this is a good beginning and all is well. And this is all because of Modi ji's priority of development across the country and this double engine system that's been working, and the promises that have been made and have been kept. That's important, and Modi ji has seen that it happens. And what about Tamil Nadu? Tamil Nadu, at this point of time, there is DMK, AIDMK and the Vijay factor. So we'll have to watch it very closely before analyzing Tamil Nadu, because the essential issue is the Dravidian movement. Now, how far the Dravidian movement is going to take roots and who is to be identified as the real Dravidian party is something that will be decided in this election. So we at the moment 89 we have crossed. It's just 11 seats to 100 to hit century. It is beyond what exit polls had projected. People of Kerala have gifted a decisive victory to Congress-led UDF. It's a moment of excitement, exuberance, pride. So we are thankful, grateful to the people of Kerala, and this is also a reflection of how the CPM-led LDF was a miserable failure, and the anti-incumbency factor has played very well. So all in all, see, as we speak now, we have crossed 89 and LDF has gone below 50. So this is a
true reflection, a great victory at this early hours itself. Any other factor for defeat of this left CPI? No, corruption, corruption, the failure in the administration of the health sector, the administration of education sector, all these have played. Welfare has been totally ignored. They were focused only on the PR work of Pinarayi Vijayan. So people see across Kerala, if you travel, you would have seen the boards. So the of Pinarayi Vijayan. Now we know that it is the people do not believe in PR work but real work. No, it is the Congress party to decide. इकट्ठे हमने देखे हैं, कई नतीजों के दिन में हम लोगों ने लगातार बात की है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि 11-12 बजे तक ही जाकर थोड़ा बहुत स्थिति स्पष्ट होनी शुरू होती है और फिर भी पलट जाती है, तो थोड़ा इंतजार करना उचित है। जैसे कई जगहों पे, जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो लीड आ रही है, पहले ही राउंड में अगर 3000-4000 का कैंडिडेट लीड ले लेता है तो वो एक बड़ी बात है। अभी मुझे लगता है कि इंतजार करना उचित रहेगा। उम्मीद क्या है आपको? लोकतंत्र जीतेगा। कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक, हम अपनी तरफ से पूरे आश्वस्त हैं कि कई राज्य जहां हम डायरेक्ट लड़ रहे हैं, जहां हमारी स्थिति मजबूत है, वहां हम जीतेंगे। असम की बात पूछूंगा आपसे। बहुत अच्छे तरह से लड़े चुनाव हमारे साथी, और वहां भी परिवर्तन की एक लहर है। इंतजार करिए, जरूर नतीजा मिलेगा। शुरुआत है, अभी पूरा हम शुरुआत देखेंगे कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से काउंटिंग चल रहा है, और हर राउंड, हर वोट अच्छी तरीके से उसका काउंटिंग हो, उस पर हमारी नजर रखेगी। यदि यही काम उनकी सरकार ने 15 साल किया होता और जाग के ठीक से बंगाल को चलाया होता, तो आज उनकी पार्टी की ये स्थिति नहीं होती। आज पश्चिम बंगाल की जनता उनके 15 वर्षों के कुशासन से तंग आ चुकी थी, उनकी निर्मम सरकार से तंग आ चुकी थी। पश्चिम बंगाल की जो हमारी माँ बहनें हैं, वो लोग परेशान हो गई थी, और सनातन धर्मी जो हिंदू लोग हैं, उन लोगों को तो ऐसा व्यवहार इन्होंने कराया था अपने शासन प्रशासन के गुंडों से कि उनका जीना मुश्किल कर दिया था। लोगों के अंदर भय का एक माहौल बना दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता ने आज जिस प्रकार का जनादेश देने का निर्णय किया और जो रुझान आ रहे हैं, वो बहुत साफ है कि भय से अब बंगाल की जनता बाहर आ गई। लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस एक बड़ी समस्या, और अभिषेक बैनर्जी जिस तरीके से कल कहा कि झंडा तो लेकर आइए, साथ में डंडा भी लेकर आइए। देखिए, ये जो उनकी मानसिकता है वैसे ही उनकी भाषा है, और चुनाव आयोग हर चीज पे नजर रखे हुए है। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे चुनाव की प्रक्रिया का अनुपालन करवाया है, और आगे भी हर चीज पे चुनाव आयोग की नजर है। जीत के लिए आश्वस्त है आप लोग सर? अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं? जो पूरे परिणाम है वो बहुत साफ है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। देखिए, हम लोग परिवर्तन की पार्टी है। हम चाहते हैं कि 10 साल के इतनी बुरी तरह की राजनीति चले हैं इस सरकार की तरफ से कि इसको एक बदलाना और मेरे ख्याल में नए तरीके की राजनीति ले आना बड़ी बड़ी जरूरी है। बार-बार ये सवाल आ रहा है कि पीएम कौन होगा, क्योंकि आप खुद एक एमपी हैं। बाहर कैसी वेणुगोपाल के लगे हुए हैं। इस विषय पे हम अभी बात नहीं करना चाहते हैं। चुनाव के रिजल्ट आने दीजिए। खड़गे साहब जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो किसी को भेजेगा जीते हुए एमएलए के साथ बात करने के लिए। उसके बाद वो लोग उनकी राय दे देंगे, फिर हाईकमान तय करेंगे। ये है हमारे कांग्रेस की नीति। मुझे क्यों पूछ रहे हैं? মানুষ বেরিয়ে পড়লে আমি কি করতে পারি? মানুষই তো নির্বাচন করেছে, প্যাটার্ন তো আমাদের হাতে ছিল না। এই নির্বাচন যা বলবো দুপুর দুটোর পরে বলবো। এই দুটোর পরে এই নির্বাচন মানুষ লড়েছে, এই লড়াই মানুষের সঙ্গে শাসক দলের লড়াই, বলে যা বলার দুটো। हम देख रहे हैं कि एक विशेष विधानसभा टीटापुर विधानसभा में काउंटिंग बहुत स्लो जा रहा है, और वो बात हम अंदर अभी कह के आए हैं कि ऐसा क्यों है कि टीटापुर विधानसभा में काउंटिंग स्लो है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको थोड़ा, आप तो लीड कर रहे थे, अभी पता चल रहा है कि थोड़ा, ये तो हर राउंड में तो होता ही है कि एक राउंड ऊपर नीचे, ये तो स्वाभाविक है। जो अंतिम नतीजे हैं उस तक हम कॉन्फिडेंट। अब तक कुछ नहीं हुआ है, बढ़त बनाने दो। ये इनिशियली ऐसे रिजल्ट आते हैं, जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे तब पता चलेगा कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, और कहाँ सिर्फ हवा है। अभी तो सिर्फ
फर्स्ट राउंड है, पोस्टल बैलेट है, उसमें हवा ही आती है सब। जी हवा निकल जाने दो, बाद में पता चलेगा। देखिए, 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सुशासन में विकसित भारत का जो सपना है, जिसको हमें साकार करना है, पूरे देश की आस्था है। और ये कहना गलत नहीं होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई राजनीति भारत देख रहा है, और वो है प्रो इनकम्बेंसी की, जहां रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है, जहां पे एक भविष्य के लिए आपके पास रोड मैप होता है। और आपने बात करी पश्चिम बंगाल की, तो मैं कहूंगा अब दूर नहीं है सपना साकार होने से। हमने देखा अंग बंग कलिंग तीनों पर अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी का राज होगा और जनता की सेवा की जाएगी। और पश्चिम बंगाल के लिए एक बात और कह दूं, ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की धरती है, और वो कहते थे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। अब वो सपना साकार होने जा रहा है, और हम देख रहे हैं किस तरह से, चाहे वो असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, और चाहे अन्य राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मजबूती से जनता से आशीर्वाद पा रही है। गौरव जी, जिस तरह के ट्रेंड से अगर यही नतीजे में कन्वर्ट, तो क्या आपको लगता है कि टीएमसी या विपक्ष जो है बहुत आसानी से इन नतीजों को स्वीकार कर पाएगा? क्योंकि चुनाव के दौरान ही जिस तरह से इलेक्शन कमीशन तक को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई है। देखिए, ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, दोनों कहावतें मैंने बता दी हैं। ममता बनर्जी जो चाहे वो चुन ले, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व पर अगर आप सुबह 8:30-9 बजे से, जैसा मैंने गौरव गोगोई जी को भी और टीएमसी के प्रवक्ताओं को भी बोलते सुना, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए अपशब्द कहने लगे। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और ये दिखाता है किस तरह से ये दल जो है, ये मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू करते हैं और जनता का भी अनादर करते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, तुष्टीकरण की राजनीति जो वहां चल रही थी, आज एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि जो राष्ट्रभक्त होगा जीत उसी की होगी। और ये भी संदेश गया है बिल्कुल स्पष्टता से कि जो हिंदू है वो भारत में उतना ही नागरिक है जितना कोई और है। और दुख की बात यह है, ममता बनर्जी ये भूल गई हैं। গোটা রাজ্য থেকে খবর নিয়েছি, 3 রাউন্ডের শেষে বিজেপি 165টা সিটে কমফোর্টেবলি এগিয়ে আছে গোটা রাজ্যের। আর নন্দীগ্রামে আমার 3rd রাউন্ডের শেষে আমার লিড আছে 6777, অ্যাপ্রক্স 7000। আর ভবানীপুরে আমার পোস্টাল ব্যালটে নন অফিসিয়াল লিড হয়েছে, আমি বলছি না, ওটা তো ইলেকশন কমিশন প্রপারলি বলবে। ফার্স্ট রাউন্ড ছিল মুসলিম এলাকা 63 নম্বর ওয়ার্ডে, আমার ডেফিসিট হয়েছিল অ্যাপ্রক্স 2000। সেকেন্ড রাউন্ড ছিল হিন্দু এলাকা, আমিও 2000 কাভার করেছি, এবং এখন 2200 ভোটে আমি লিড করছি ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি থেকে। মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে। আমার সেকেন্ড রাউন্ডে 4500 মতো লিড হয়েছে, thanks to every Hindu Sanatani, those who are cast in favor of me in ward number 63. Expected result 3, 4, 5, 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব, এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব, এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, মানে এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো, এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। না না না, ইটস টু আর্লি টু সে এনিথিং। দাদা, দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও করছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত? কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জি
কে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস আনএক্সপেক্টেড। মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে বিজেপি ডাব পড়াতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 2200 উঠে গিয়ে। এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো। তারপরে মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, आसाम का हो, अन्य राज्यों का हो, ये मुख्य रूप से एक गुड गवर्नेंस का वोट है। आसाम में जहां पे अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने, वहां के लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया है और 2/3 नहीं लगभग 4/5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतती हुई अभी तक के रुझान के हिसाब से दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल उससे बड़ा उदाहरण, जहां पे ममता जी ने, टीएमसी ने गुंडागर्दी, माफिया, इसका इतना प्रकोप फैलाया कि उत्तर प्रदेश में जैसे पहले था, इंडस्ट्री आदि सब वहां से भाग गए। आज पश्चिम बंगाल के लोगों ने पुनः एक वोट दिया है कि हमको गुड गवर्नेंस चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसी भारतीय जनता पार्टी की अन्य सरकारों जैसी सरकार हमको भी चाहिए, जहां पे अपराध का सफाया हो और विकास तेजी से आगे बढ़े। पश्चिम बंगाल के मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। वहां पे भी अब अन्य भाजपा शासित सरकारों की तरह, प्रदेशों की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह विकास की गति बहुत तेज होगी और मुख्य धारा में पश्चिम बंगाल अपना योगदान कर रहा होगा। रिजल्ट तो पहले हो चुकी है, अभी घोषणा होना बाकी है। लोगों ने जिस भरोसा के साथ वोट दिया है ना, वो पूरा होगा। नया सरकार और बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। और क्या लगता है इस बार जनता चाह रही है परिवर्तन, और अच्छा संख्या लेके बीजेपी सरकार बनाएगी। 293 सीट में रिजल्ट नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बंगाल में था ही नहीं। चुनाव कमीशन जब से हाथ में लिया तब से लॉ एंड ऑर्डर दिखता है, और जिस प्रकार शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, काउंटिंग उसी प्रकार होगा और सरकार भी उसी प्रकार से नया सरकार यहाँ शपथ लेगी। ममता बनर्जी कह रहा है कि हाँ, आज दोपहर 12 बजे तक उनका है समय, उसके बाद हमारा समय है। बनर्जी बोल रहा है कि गुजराती गैंग आपका कहना के साथ पूरा भारत की आ जाइए, कि डायमंड हार्बर मॉडल की कोई चेंज नहीं है। देखिए, डायमंड हार्बर मॉडल क्या है, ये तो देश देख रहा है ना। एक ही विधानसभा में जो पोलिंग हो रहा है वो डायमंड हार्बर में फलता है। 8 लाख वोट से जीतते थे, आज महिलाएं बाहर आके बोल रही कि हमें 15 साल से वोट देने नहीं दिया है। एक दिन पहले उनका वोटिंग कार्ड छीन लिया जाता था, आज वही लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और लोग भरपूर वोटिंग करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। जिन लोगों ने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ चुनाव के समय, आज भी सफल नहीं हो पाएंगे। सुबह से हमारे यहाँ खड़गपुर में वार्ड में जाके पुलिस और ये पेट्रोलिंग कर रही है। मुझे लगता है कि सारा मालूम है पिछले 3-4 इलेक्शन का, कहाँ कहाँ क्या हुआ, कौन ऑफिसर का रोल क्या था, किस जगह में गड़बड़ होता है, सब उनके पास रिकॉर्ड है। उसी आधार पर उन्हें ये सारी व्यवस्था की है। अब देख लीजिए, अच्छा से शांतिपूर्ण चुनाव हो जाएगा, ये सब घर घुस जाएंगे। नहीं, वहाँ कुछ घटना हुआ है जिसको लेकर रिपरकशन हो रहा है, चुनाव कमीशन देख रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ और लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, शांति से काम लेना चाहिए। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि अभी जो टीएमसी के 5 आदमी नहीं निकलेगा। अभी सारे लोग अंदर जाने के बाद आधा घंटा के बाद उनका काउंटिंग एजेंट अकेले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि घर से बुला बुला के लोगों को ला रहे हैं, कोई जाने वाले नहीं है अंदर, क्योंकि 2 घंटा के बाद तो पता ही चल जाएगा सब। पूरा पिछले 2-3 साल से देखिए, पूरा देश में जहां भी चुनाव हो रहा है बीजेपी जीत रही है। अभी 5 स्टेट में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा होगा।
और बाकी जो पार्टी धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ थे, इनकी स्थिति इन्हीं की जैसी होगी। अभी मेरा जो स्टेटमेंट पहले दिन से था, आज से 6 महीना पहले, आज भी हुई मैं स्टैंड कर रहा हूँ। एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट क्या बोल लेते 4 मई? अगर पॉलिटिकल साइंस साइंस है, अगर सोशल साइंस साइंस है, तो तृणमूल कांग्रेस अपना जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, वो पूरा कर लिया है। जनता की सरकार बनने जा रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ये भावुक बड़े पल है। और मैं अभी देख रहा था, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता के आंखों में आंसू है। और ये आंसू इसलिए है कि इस परिवर्तन के लिए 100 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। और ट्रेंड जिस ओर आगे तेजी के साथ बढ़ रहा है, बम्पर जो है सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। और ये जीत पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है। ये जीत मोदी जी की नेतृत्व की जीत है। और ये जीत हमारे करोड़ों कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत है। और ये जीत समस्त सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तराई, डुवर्स और नॉर्थ बंगाल की स्वाभिमान की जीत है। और ये जीत स्पष्ट बताता है कि घुसपैठ की हार हुई है और देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की जीत हुई है। और ये जीत स्पष्ट बताता है कि पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद जो टीएमसी का कुशासन था, उनका जो भ्रष्टाचार था और उनका जो घुसपैठ के प्रति जो प्रेम था, उसकी हार हुई है। और मैं आपके माध्यम से समस्त पश्चिम बंगाल की जनता को, सिलीगुड़ी की जनता को, नक्सलबाड़ी माटीगढ़ा की जनता को, फांसीदेवा की जनता को, दार्जिलिंग, खरसंग, कालिम्पोंग की जनता को, समस्त नॉर्थ बंगाल की जनता को प्रणाम करता हूं। ये जीत जनता को समर्पित है। ये जीत हमारे जो शहीद कार्यकर्ता हुए, ये उनको श्रद्धांजलि है। और भविष्य में ये जीत स्पष्ट करता है कि पश्चिम बंगाल विकास चाहता है। पश्चिम बंगाल मोदी जी के नेतृत्व के साथ, देश के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहता है। अभी तक रिजल्ट जो है पूरा नहीं आया है, उससे पहले ही इतना कॉन्फिडेंट? देखिए, जैसा ट्रेंड बता रहा है, हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी 180 से ज्यादा सीट के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। तो देखिए, रुझानों में तो असम में बीजेपी को बहुमत आता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन बंगाल में अभी भी कांटे का मुकाबला है। और अगर वोट चोरी हुई होगी, SIR का खेला हुआ होगा बिहार के तरह, तो बीजेपी वहाँ सरकार बनाएगी। नहीं तो जनता ने तो ममता दीदी को ही सरकार बनाने के लिए वोट किया था। अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिख रहा है, अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, उसमें बीजेपी के लोग खुश हैं। तो क्या अंतिम परिणाम आता है? अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती है, तो फिर ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। इस पर पूरे विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को कोई फैसला बड़ा लेना होगा, कुछ ऐसा करना होगा। नहीं तो इस तरह से तो फिर विपक्ष मुक्त भारत, जो विपक्ष मुक्त कांग्रेस, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो वो बोल रहे थे, वही हो जाएगा। तब तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रहेगा। देखिए, नदिया चैतन्य का भूमि, धर्म रक्षा के लिए राम नाम, कृष्ण नाम रक्षा के लिए चैतन्य खुद पैदा हुआ। इसलिए यहाँ चैतन्य पैदा भूमि से साउथ कलकत्ता तक जाने के लिए जितने स्थान है, सारी जगह में गेरुआ लहर चल रहा है। यहाँ गेरुआ छोड़ा कोई और कुछ नहीं है, भाजपा मय बन गया। भाई संतोष तो आप लोग बताएंगे। हमने तो पूरी कोशिश करी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हमने पूरी कोशिश करी है लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। हमने पूरी कोशिश करी है कि लोग निर्भय जाके वोट दे के आए।
हमने पूरी कोशिश करी है कि ईवीएम की सैंक्टिटी मेंटेन हो, हमने पूरी कोशिश करी है कि सुष्ट काउंटिंग हो। हमने अपील किया है सबको कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर हाथ में मत लीजिएगा। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, ये एक पर्व की तरह है, फेस्टिवल की तरह है, जैसे दुर्गा पूजा होती है। आइए आप आगे प्रिपरेशन कीजिए, जब कैंपेनिंग पीरियड होता है, वोट के समय आप जैसे पेंडल जाते वैसे जाइए, आप जब विसर्जन के समय आ गए तो विसर्जन कीजिए, उस टाइप का है। सर, जब 2 चरण का चुनाव का ऐलान किया गया था तो दूसरे स्टेट में कहा जा रहा था कि पता नहीं चुनाव आयोग कितना सक्सेस हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में एक रीति रही है कि 3 से 7 चरणों के चुनाव तक एक रीति रही है। उस नीति को आप लोगों ने तोड़ा और अब सफलतापूर्वक नतीजे सामने आए, क्या कहेंगे सर, थोड़ा बोलिए। हम लोग तो रेडी थे, हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि सिंगल फेज में करना है तो भी हम रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, हमने कहा था। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वहाँ पे फोर्स का क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल फोर्स कितनी अवेलेबल नहीं है, प्लस और क्राइटेरिया होते हैं, और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी बंगाल में सिंगल फेज इलेक्शन भी हो। थैंक यू सर। टीएमसी कह रही है कि जहाँ अपनी बेटी को तो जहाँ 1000 से कम वोटों से नतीजे आएंगे, वहाँ पे रिपोलिंग की मांग की जाएगी, हम लोग रिपोल का मांग करेंगे। रिपोल अब कैसे होगा? अब तो रिकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर फिक्स्ड है, सब आरओ जानते हैं। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो रिकाउंट होगा, वरना नहीं होगा। वो क्राइटेरिया फिक्स्ड है तो सब जानती है पॉलिटिकल पार्टी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आरओ जानते हैं। जो भी किताब में होगा, जो भी रूल में होगा, जो भी रेगुलेशन में होगा, वो 100% फॉलो होगा। देखिए, पिछला 5 साल में जो हम लोगों ने काम किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमको इधर पांडिचेरी को जो सपोर्ट दिया है, और इधर के जो मुख्यमंत्री परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट आने के बाद में इधर के जो मुख्यमंत्री का जो परफॉर्मेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उनको सहायता मिला है, उससे ओवरऑल पांडिचेरी में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो बेस्ट पुडुचेरी करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया था, बेस्ट पुडुचेरी, B for business, E for education, S for spiritual, and T for tourism. And all 4 sectors we have grown actually, and that's what people have noticed it. लोगों ने समझा है कि पुडुचेरी का जो डेवलपमेंट पिछला 5 साल में हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो लोगों का चॉइस था, और हमको प्रारंभ से ही ये ट्रेंड था कि हम लोग मेजॉरिटी में आएंगे, और जो ट्रेंड और जो प्रेडिक्शंस थे उसके हिसाब से अच्छा आ रहे थे। तो बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, पांडुचेरी में और केरला में लगातार वोटों की गिनती जारी है, और अब अलग अलग राज्यों से तस्वीरें जो हैं वो जश्न के सामने आ रही है। जिन पार्टियों की बढ़त बनी हुई है उनकी ओर से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई जा रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।